Hello children and dear parents, hope you all are healthy and safe at home. Good morning, this is Richa, your computer faculty. Today I am going to continue with the chapter 5 which was formatting a document. Students, today I am going to explain the other tools of formatting a document. Before starting today's topic, just take a quick recap of your previous class. In your previous class, you had studied about what is formatting. Formatting means changing the appearance of a document to make it attractive. Students, जब हम MS Word में कुछ टाइप करते हैं और उसको चेंज करते हैं, उसमें कुछ भी चेंज करते हैं, वो फॉर्मेटिंग कहलाता है. Next, what is font? The characters of a specific size and design used for typing the text are called fonts. Bold. It makes the selected word darker than the rest of the text. Italic. The effect emphasizes the text by slanting to the right side. Underline. It emphasizes the text by placing a line under it. How to apply bold, italic and underline effects. Select the text. Click on the button bold, underline, italic, underline in the font group on the home tab. If you remember, bold, italic and underline effects को करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिस पोर्शन में हमें चेंजेस करना है. फिर हम क्लिक करते हैं. अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड बटन पे, इटैलिक करना चाहते हैं तो आई बटन पे और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू बटन पे फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. Today's we are going to study about changing text alignment, changing text color, changing text case. So are you guys ready? Alright, let's move forward on today's topic. Students, what is alignment? Before starting, tell me what is alignment. Do you know the word alignment? Alignment means margin. जब भी आप कॉपी पे कुछ लिखते हैं तो आप अलाइन करते हैं, मीन्स मार्जिन छोड़ते हैं. आपको याद है? तो उस मार्जिन को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट कहते हैं. ओके? अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज. It is always better to set the alignment before typing. We can also select entire document and then change the alignment to the text. Students, जब भी हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो यह बेटर होता है कि हम सबसे पहले अलाइन कर लें. अगर आप पहले नहीं कर पाते तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर अलाइनमेंट कीजिए. जैसे कि आप लोग अपने नोटबुक पे कुछ लिखते हैं तो आप देखते होंगे कि लेफ्ट साइड से मार्जिन किया होता है, उसे ही अलाइनमेंट कहते हैं. ओके? टेक अ लुक ऑन दिस इमेज. दीज आर द अलाइनमेंट्स. See here, these are the alignments. One by one we are going to discuss it. Number 1, align text left. Take a look here. Number 1, this is align text left. Align text left. It places the selected text toward the left margin. By default, the text is always aligned to the left margin. स्टूडेंट, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ इस डॉक्यूमेंट में, जब हम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेफ्ट साइड से मार्जिन कर देता है. आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड से यह मार्जिन कर देता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट
यही सेटिंग होती है। आप जब नोटबुक में भी लिखते हो तो लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़कर फिर लिखना शुरू करते हो। ओके, नाउ center align. Second one is, take a look here on the image. This is center align. Center align. Center align sets the text in the center of the left and right margin. It is mostly used for titles, headings. Okay? स्टूडेंट्स, जब हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो सारे टेक्स्ट को सेंटर में कर देता है। यू कैन लुक ऑन द इमेज हियर, ये सारे टेक्स्ट को सेंटर में कर देता है। मीन्स थोड़ी सी अलाइनमेंट वो लेफ्ट साइड से और थोड़ी सी अलाइनमेंट वो राइट साइड से छोड़ के सारे टेक्स्ट को सेंटर में कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंटर अलाइनमेंट टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए देते हैं। सपोज अगर यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर और नेम लिखना है तो हम सेंटर अलाइन का यूज ज़्यादातर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड अलाइनमेंट, which is align text right. Take a look on the image here. This is third alignment, align text right. In this alignment, if selected the text toward the right margin, it is often used for placing dates or reference in a document. जब हम right alignment करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं इमेज पे, take a look here, जिस तरह हमने लेफ्ट मार्जिन किया था तो वो लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़कर टाइप करना शुरू किया था। ठीक उसी तरह जब हम अलाइन टेक्स्ट राइट का यूज करेंगे तो वो राइट साइड से मार्जिन छोड़ देगा, आप यहाँ देख रहे हैं, और तब टेक्स्ट को सेट कर देगा राइट साइड से मार्जिन छोड़कर। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन फोर्थ अलाइनमेंट, विच इज जस्टिफाई अलाइन. टेक अ लुक ऑन द इमेज हियर. दिस इज जस्टिफाई अलाइन. It places the text evenly between the left and the right margins. यह टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन से थोड़ा सा गैप कर प्लेस करता है. It is mainly used for designing books, magazines and newspaper. Justify align का यूज हम ज़्यादातर जब हम बुक टाइप करते हैं, मैगजीन्स करते हैं या न्यूज़पेपर टाइप करते हैं तो उसका यूज करते हैं. Understood? Alright students. Now I am going to perform action on Microsoft Word, how to align. You have to focus on the screen. Okay, so I have to open Microsoft Word. Here Microsoft Word is open. Okay, now take a look here. आप स्क्रीन पे केयरफुल्ली देखेंगे हम यहाँ पे कैसे अलाइन करते हैं यह देखेंगे. फर्स्ट कम ऑन द पैराग्राफ ग्रुप. स्टूडेंट्स यह होम टैब है, दिख रहा है. होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप है. यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में ही आपको अलाइनमेंट है. हेयर दीज आर 4 अलाइनमेंट्स: लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड मार्जिन. अंडरस्टूड? नाउ select the text which you want to align. Suppose this success which is written in the center, let's select it. You already know how to select. Click on the cursor and drag your mouse pointer, it will be selected. जब भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो कर्सर को टेक्स्ट के पास ले जाइए और माउस के पॉइंटर से उसे प्रेस किए हुए ड्रैग कीजिए तो वो सेलेक्ट हो जाएगा. जैसे ही सिलेक्ट होगा ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाता है. तो मैं सक्सेस को सेलेक्ट कर ली. नाउ क्लिक एनी डिजायर अलाइनमेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. अब आप इसमें से किसी भी अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. मैं अब अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पे क्लिक करूंगी. यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस. अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में क्या होता है, यहाँ लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट कर टेक्स्ट को लिखना शुरू करेगा और हमारा जो टाइटल है वो ऑलरेडी सेंटर में है तो वो खसक कर यहाँ पे आ जाएगा. सो टेक अ लुक हियर. जैसे ही मैं अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट पे क्लिक करी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सक्सेस आ गया है लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़कर. अंडरस्टूड? नाउ
Second one, align text center. What is align text center? अब जब मैं align text center पे क्लिक करूंगी, it will move this text on the center of the screen. यह सक्सेस को मूव करके सेंटर पे कर देगा. सी, जैसे ही मैंने अलाइन टेक्स्ट सेंटर पे क्लिक किया, सक्सेस कहाँ आ गया? सेंटर पे आ गया. नाउ थर्ड वन इज अलाइन टेक्स्ट राइट. जिस तरह लेफ्ट में इधर आ गया था, राइट में यहाँ चला जाएगा. टेक अ लुक हियर. जैसे ही मैं अलाइन टेक्स्ट राइट पे क्लिक करूंगी, सी सक्सेस खसक कर यहाँ पर आ गया है. वह राइट साइड से मार्जिन को छोड़कर सक्सेस को यहाँ पे टाइप कर दिया. नाउ फोर्थ वन इज जस्टिफाई अलाइनमेंट. अब जैसे ही मैं जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगी, यह सक्सेस यहाँ से यहाँ आ जाएगा. टेक अ लुक. सी, यू कैन सी द चेंजेस हियर. मैं फोर्थ अलाइनमेंट का यूज की हूँ यहाँ पे. ओके, लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. once again, left, which is already in left, center, it comes in center, right, it comes in right, and justify, it comes on justify. Understood? I hope कि आपको यहाँ पे alignment समझ में आ गई हो. Now student, let's move forward on another topic. Next topic. Next topic is changing text color. Yes student, you can also change the color of text in Microsoft Word. आप टेक्स्ट के कलर को Microsoft Word में चेंज कर सकते हैं. Changing text color. Microsoft Word provides an option to change the color of the text. Microsoft Word आपको ऑप्शंस देता है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं. Take a look on this image. यहाँ पे बहुत सारे कलर की ऑप्शंस हैं. आपको जैसे भी कलर पसंद है, आप उस कलर को चेंज कर सकते हैं. ऑलराइट. नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म हाउ टू चेंज द टेक्स्ट कलर. यू हैव टू फोकस ऑन द स्क्रीन अगेन. सो वी हैव टू ओपन व्हाट? Microsoft Word. Here we come again on Microsoft Word. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, मैं बार बार बता रही हूँ कि जब भी आपको कुछ चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा. सो सक्सेस इज ऑलरेडी सेलेक्टेड हियर. यहाँ पे सक्सेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है. बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की जो कलर होती है वो ब्लैक होती है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं. टेक्स्ट की कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है. अब मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज कर रही हूँ. सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट विच कलर यू वांट टू चेंज. मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को मैंने यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया. नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर. आप यहाँ पे आएंगे होम बटन पे. होम बटन के फॉन्ट ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप है. फॉन्ट ग्रुप के सबसे यहाँ कॉर्नर में आइए. कैपिटल ए आपको लिखा हुआ दिख रहा है हियर. यहाँ कैपिटल ए दिख रहा है. इसके ठीक बगल में एरो बना है, इस पे क्लिक कीजिए. वन बॉक्स विल ओपन. यहाँ पे आपको कलर्स की ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर. जैसे ही आप कैपिटल ए पे क्लिक करेंगे, यह एक कलर का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं. सपोज आई वांट टू सेलेक्ट दिस रेड कलर, सो आई क्लिक ऑन रेड कलर. नाउ सी द चेंज. दिखा आपको? सक्सेस ब्लैक कलर से था, अब रेड कलर से हो गया. अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडरस्टैंड इट. यहाँ पे सक्सेस ब्लैक कलर में है. अब मैं इसे पहले सिलेक्ट करती हूँ. सो क्लिक हियर एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर, इट विल बी सेलेक्टेड. ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस कैपिटल ए. इस कैपिटल ए पे आपको क्लिक करना है. यहाँ पे एक कलर बॉक्स ओपन हो गया है. अब यहाँ से आप अगेन अपने कलर को सिलेक्ट कर लीजिए. सपोज मैंने ये लाइट ब्लू कलर सिलेक्ट किया, ओके किया. अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया? लाइट ब्लू कलर से सक्सेस हो गया. फर्स्ट मैंने सक्सेस को चेंज किया रेड कलर में और सेकंड मैंने चेंज किया लाइट ब्लू कलर में. तो इस तरह से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ
Let's move forward another topic, which is last topic of today's class, changing text case. Take a look here on the image, changing text case. Students, you can change the case of the existing text without retyping it in Microsoft Word by using the change case option available in the font group. आप अपने टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं, फोकस ऑन द इमेज हियर, जिसकी वजह से आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अंडरस्टूड? There are 5 cases available here. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 cases available here. पहले मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको ये डिफाइन कर कर बताऊंगी. So here नंबर 1 इज सेंटेंस केस. अगर आप फॉन्ट ग्रुप पे ये डबल जो ए लिखा आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस केस ओपन करेगा, जिसमें पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, सेकेंड है लोअर केस, थर्ड है अपर केस, फोर्थ कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड फिफ्थ टॉगल केस. अब इसकी यूज क्या है इसके बारे में जानते हैं. सेंटेंस केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट. सेंटेंस केस में क्या होता है, यहाँ पे सारी एग्जाम्पल्स दी हुई है. ये 5 केस है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस. ठीक है, फोकस कीजिएगा स्क्रीन पे. पहला सेंटेंस केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस. यह सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट. यह एक सेंटेंस यहाँ लिखा है. अगर आप फोकस करेंगे तो दिस का टी कैपिटल है, दिख रहा है आपको, दिस का टी कैपिटल है. तो सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है. सेकेंड वन, लोअर केस, कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस. यह क्या करता है, टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में टाइप करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अब आप यहाँ देखेंगे कि सारा स्मॉल लेटर में टाइप किया हुआ है. थर्ड, अपर केस, कन्वर्ट्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस. यह क्या करता है, सारे टेक्स्ट को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर, दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट. ये सारा कैपिटल लेटर में कन्वर्टेड किया हुआ है. फोर्थ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, चेंजेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच सेलेक्टेड वर्ड टू अपर केस. यह क्या करता है, वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है, हर वर्ड को. अब नाउ टेक अ लुक हियर, दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट. तो इसके आप अगर देखोगे, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया. नाउ टॉगल केस, कन्वर्ट द केस ऑफ एवरी सेलेक्टेड कैरेक्टर इन रिवर्स मैनर, i.e. अ कैपिटल कैरेक्टर विल कन्वर्ट इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा. यह सारे टेक्स्ट को रिवर्स करता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर ये सारा डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि दिस का टी छोटा कर दिया है, बाकी सब कैपिटल कर दिया है, मीन्स जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा उसे यह कन्वर्ट करेगा स्मॉल लेटर में, और जो स्मॉल लेटर में लिखा होगा उसको यह कन्वर्ट करेगा कैपिटल लेटर में. अंडरस्टूड? Now again I am going to perform this action on the screen. You have to focus here. So we have to open what? Yes, Microsoft Word again. This is open here. Now select it. Here it takes preparation. First I am going to increase the size of all the text so that you can see the differences clearly. All right. Now I am going to select this line. It takes preparation and character. So select it. Okay. मैं यह सेंटेंस को सेलेक्ट कर ली हूँ. अब आते हैं केस पे.
दिस इज अ होम टैब एंड दिस इज अ फॉन्ट ग्रुप। यह दिख रहा है आपको फॉन्ट ग्रुप में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 ए है, दिख रहा है आपको, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। इसके ठीक बगल में एक एरो बना है, तो ये चेंज केस है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे यह हो गया सेंटेंस केस, सेकेंड लोअर केस, थर्ड अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। ओके, तो फर्स्ट आते हैं सेंटेंस केस पे। यह सेंटेंस ऑलरेडी सेंटेंस केस पे है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, तो हम सेंटेंस केस को बाद में देखते हैं। अगेन क्लिक ऑन चेंज केस ऑप्शन एंड गो ऑन सेकेंड ऑप्शन विच इज लोअर केस। अब लोअर केस में क्या होता है स्टूडेंट, सभी को स्मॉल कर देगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इट का आई कैपिटल है और बाकी सारा स्मॉल है, तो ये क्या करेगा, इट के आई को भी स्मॉल कर देगा। चलिए क्लिक ऑन लोअर केस, सी क्या किया, इट के आई को भी स्मॉल कर दिया। अगेन सेलेक्ट इट। नाउ अगेन क्लिक ऑन चेंज केस ऑप्शन एंड गो ऑन फर्स्ट ऑप्शन सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में यह क्या करेगा, इट के आई को कैपिटल कर देगा। सी कर दिया। अगेन सेलेक्ट इट। नाउ गो ऑन चेंज केस ऑप्शन एंड कम ऑन अपर केस। अपर केस में क्या करता है, सभी को कैपिटल कर देगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अपर केस ऑप्शन। सी क्या किया, सभी को कैपिटल कर दिया, दिख रहा है आपको। नाउ अगेन सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड गो ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या करता है स्टूडेंट, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कैपिटलाइज ईच वर्ड। सी आई कैपिटल कर दिया, टेक्स्ट के टी को कैपिटल, प्रिपरेशन के पी को कैपिटल, एंड के ए को कैपिटल एंड कैरेक्टर के सी को कैपिटल कर दिया। अगेन सेलेक्ट द सेंटेंस एंड गो ऑन लास्ट ऑप्शन विच इज टॉगल केस। तो टॉगल केस आपको याद है स्टूडेंट, क्या करता है, रिवर्स कर देता है। मीन्स जो कैपिटल में टाइप किया हुआ है उसे स्मॉल में करेगा और जो स्मॉल में टाइप किया है उसको कैपिटल में करेगा। तो आप देख रहे हैं इट का आई कैपिटल और टी स्मॉल है, तो क्या करेगा, आई को स्मॉल, टी को कैपिटल। टेक्स्ट के टी कैपिटल है, रेस्ट स्मॉल है, तो वो इसको रिवर्स कर देगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टॉगल केस। सी द डिफरेंस, दिखा, इट के आई को स्मॉल कर दिया, टेक्स्ट के टी को स्मॉल, रेस्ट कैपिटल, इसी तरह बाकी में चेंजेस कर दिया। अंडरस्टूड, समझ में आ गई आपको। सो दिस इज चेंज केस ऑप्शन, ऑलराइट। नाउ स्टूडेंट्स, here your topic is finished now. Today we studied about alignment, change text color and changing text case. Understand? Okay students, for now today's topic is finished here. In next class we will meet with another topic. So bye students, have a nice day. Thank you.